بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کی سمجھ تو ہو، ہمیں یہ بات سمجھ میں تو آئے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ جب تک ایک ایمان والا اس دنیا میں رہے گا تب تک اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ایمان کی نعمت کہ ایک ایمان والا جب تک اس دنیا میں رہے گا، جب تک اس دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرات، آخر ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان ہے کیا؟ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ عجیب بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے پہلے سے ہی ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کہتے کس کو ہے؟ آخر مسلمان ہو گئے، آخر اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قانون و قوانین کے مطابق اللہ کو ماننا اور دل سے اس کو ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ صرف اور صرف نماز پڑھنے سے یا روزہ رکھنے سے یا اللہ کو ماننے سے یا احادیث نبویہ کو ماننے سے آدمی پورا مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عظیم الشان ہستی کے سامنے اپنے آپ کو ایک دم سے سونپ دینا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر ڈالنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کے حکم کے سامنے اپنا کوئی حکم نہیں لانا، اس کے حکم کے مطابق اپنے عقلی گھوڑے کو نہیں دوڑانا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو خواب میں دکھایا، قرآن کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں۔ تو جب یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کر دیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس میں کوئی عقلی گھوڑا نہیں دوڑایا، حالانکہ اگر آدمی عقلی گھوڑا دوڑائے اور سوچے اور سمجھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ کون سے اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اگر آدمی سوچے تو آدمی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا یہ کون سی عبادت ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوا اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے۔ یہ ہے ایمان، اس کو اسلام کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے اندر اپنے عقل اور اپنے گھوڑے کو دوڑانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے اور جتنے سفر کے سامان تھے، کھانے پینے وغیرہ کا سامان، سبھی سامان ختم ہو گئے۔ ایک کھلیان میں پہنچے، وہاں پہ ایک چرواہا نظر آیا، اس سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں اور سفر میں ہیں، ہمارا سارا سامان ختم ہو گیا ہے، تو آپ بکری چرا رہے ہیں تو ایک کام کیجئے کہ اپنے اس بکری کا دودھ ہم کو دے دیجئے اور ہم لوگ پی لیں تاکہ اپنا آگے کا سفر طے کریں۔ تو
उस चरवाहे ने कहा कि ऐ अमीरुल मुमिनीन, ये जो बकरी है ये हमारी नहीं है, इसका मालिक कोई और है, मैं तो सिर्फ इन बकरियों को चराता हूं। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम मुझसे कीमत ले लो और मुझको इनमें से एक बकरी दे दो। उसने कहा कि ठीक है। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि एक बकरी मुझको दे दो, और जब तुम्हारा मालिक आएगा तो तुम उसको कह देना कि एक बकरी जो है भेड़िया उठा ले गया, इससे क्या होगा कि तुमको तुम्हारी बकरी की कीमत मिल जाएगी, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, और हमारा फायदा ये होगा कि हमको सफर में एक बकरी मिल जाएगी और हम उसका दूध पीते हुए आसानी के साथ अपने सफर को तय कर लेंगे। और भेड़िया तो बकरियों को खाता ही रहता है, इस तरह से अपने मालिक को बता देना कि भेड़िए ने जो है बकरी को खा लिया। तो उस बंदे ने अजीब बात फरमाई, उसने कहा कि ऐ अमीरुल मुमिनीन, अगर मैं इस बकरी को आपको दे दिया तो मैं मालिक के सामने तो बच जाऊंगा, लेकिन अपने मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने क्या जवाब दूंगा? अपने दुनियावी मालिक को तो जवाब दे दूंगा, उसके सामने तो झूठ बोलकर और बहाने मारकर बच सकता हूं, लेकिन अपने मालिक हकीकी से कैसे बचूंगा? इसको कहते हैं ईमान, कि जहां भी हो, चाहे जंगल में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे घर में हो, चाहे जहां भी हो, ईमान हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए, अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए, अल्लाह का डर हमारे अंदर होना चाहिए, इसको कहते हैं ईमान। लेकिन आज अफसोस होता है कि हमने ईमान की कदर और कीमत को नहीं जाना, हमने ईमान की कदर और कीमत को भुला दिया। ईमान की कदर और कीमत को अगर जानना है तो आइए 1400 साल पहले चलते हैं, जब हमारे नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दीन की तरफ बुलाया, तो उस वक्त किस तरह की तकलीफें सहाबे किराम ने बर्दाश्त की, कितने कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और क्या हाल थे उस वक्त जब हमारे नबी ने लोगों को दीन की तरफ बुलाया था। सहाबा मुर्दार खाते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, ये हाल थे। इस हालत में हमारे नबी ने जब लोगों को दीन की तरफ बुलाया तो उस वक्त कैसी फजा बनी हुई थी मक्के में, सहाबा को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। जब वो इस्लाम लेकर आए, जब वो ईमान लेकर आए, तो उनको किस कदर मुसीबतों आलाम को बर्दाश्त करना पड़ता था। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का आपने वाकया सुना होगा कि जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए और इस्लाम में दाखिल हो गए, तो उनको किस तरह की तकलीफें दी गई, कितनी कितनी मुसीबतों आलाम को बर्दाश्त करना पड़ा। जलती हुई रेत में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को नंगे जिस्म लिटा दिया जाता था और उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ही बात कहते थे, अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इतनी मुसीबतों के बावजूद हजरत बिलाल हबशी अपने ईमान से नहीं फिरे, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आज अगर हम और आप उनके जगह पर होते तो ना जाने कब अपने ईमान का सौदा कर चुके होते। हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है, हमारा ईमान इतना खोखला हो चुका है कि चंद सिक्कों की वजह से हम अपने ईमान को बेच दिया करते हैं। ये थी उनके ईमान कि वो अपने ईमान का सौदा नहीं किए, लाख मुसीबतें आई बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किए। अब इससे भी पीछे चले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, उनकी बीवी हजरत आसिया जब वो ईमान ले आई और उनके ईमान लाने का पता फिरौन को चला, तो उसने हजरत आसिया के साथ क्या क्या नहीं किया, कितनी कितनी मुसीबतें उनके ऊपर ढाई, कितना कितना जुल्म उनके ऊपर किया। उनके हाथों में कील ठोक देता था, उनके पैरों में कील ठोक देता था, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत आसिया पर, इतनी मुसीबतों के बावजूद भी हजरत आसिया इस्लाम से नहीं फिरी, ईमान के दामन को नहीं छोड़ा, अपने आप को अल्लाह के सामने रखा और मालिक हकीकी से ही गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अपने ईमान को हाथ से जाने नहीं दिया। ये है ईमान, ये है अपने ईमान को बचाना। और इससे भी आप करीब में देखिए, माज़े करीब के हालात देखिए, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, अंग्रेज की अदालत में खड़े हैं, अंग्रेज जज कहता है हुसैन अहमद मदनी, मैंने सुना है कि तुमने फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। मौलाना मदनी ने कहा फतवा देता है क्या, दिया क्या होता हो, अब देता हूं कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। अंग्रेज जज ने कहा तुमको पता है कि इस भड़काऊ वाली तकरीर की सजा क्या होती है? फरमाया क्या होती है?
जज ने कहा कि मैं तुमको फांसी के तख्ते पे लटका दूंगा, तख्ते दार पे लटका दूंगा। मौलाना ने कहा कि जब हुसैन अहमद मदनी देवबंद से आ रहा था तो कफन का कपड़ा भी साथ में लेकर आया था। मौलाना जौहर कदमों में गिर पड़े कि हजरत बयान बदल लीजिए वरना ये आपको फांसी दे देगा। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि जौहर अगर बयान बदलता हूं तो ईमान बदल जाएगा। ये थे हमारे अकाबिरीन कराम, ये है ईमान की हिफाजत, इस तरह से होती है ईमान की हिफाजत, ये है अपने ईमान को बचाना। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा ईमान इतना खोखला हो गया है, इतना खोखला हो गया है कि हम चंद सिक्कों पे अपने ईमान को बेच डालते हैं। वो सहाबे कराम थे, एक दौर था कि उस वक्त ईमान लाने पर जान का खतरा था, माल का खतरा था, जान जाने का अंदेशा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ईमान को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। आज एक दौर यह है कि आज हमें कोई जान का खतरा नहीं, कोई माल का खतरा नहीं, नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी लेकिन आज कोई पाबंदी नहीं, दाढ़ी रखने पर पाबंदी थी लेकिन आज कोई पाबंदी नहीं, उसके बावजूद भी हम नमाजें नहीं पढ़ते, उसके बावजूद भी हम दाढ़ियों को नहीं रखते। आप पूरी हदीस का जखीरा उठाकर देख लीजिए, एक सहाबी भी बता दीजिए जिसने दाढ़ी को मुंडवाया हो। आपको एक सहाबी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी दाढ़ी को मुंडवाया हो। लेकिन आज हमें किसने रोका है? आज हम मोहम्मद के उम्मती होने के दावेदार हैं, सहाबे कराम को अपना बड़ा मानते हैं, सहाबा के पैरोकार अपने आप को बतलाते हैं, अल्लाह का फर्मा बरदार अपने आप को बतलाते हैं। लेकिन आप बताइए कि आपके ऊपर क्या खतरा है? आपको किसने मना किया है दाढ़ी रखने से? आपको किसने मना किया है नमाज पढ़ने से? लेकिन नहीं, हम इन सब पाबंदियों के बावजूद वो लोग उस जमाने के अंदर रोजा रखते थे, नमाज पढ़ते थे, ज़कात देते थे, हज अदा करते थे, इतनी ज्यादा जान का खतरा था, इतना ज्यादा जान का खतरा था, लेकिन ईमान को हाथ से जाने नहीं देते थे। आज हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, उसके बावजूद भी हम अपने ईमान का सौदा करते हुए फिरते हैं। आज हमारा हाल ये है कि हम उसके बावजूद भी अपने ईमान को बेच डालते हैं। अजान होती रहे, होने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हमारा हर काम जो है होता रहेगा, लेकिन मस्जिद की सदाएं बुलंद होती हैं, हम मस्जिदों में नहीं जाते हैं। ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम मुसलमान हैं और कल वो मुसलमान थे। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, तो क्या बर्दू था तू जिसका वो एक टूटा हुआ तारा। आगे फरमाते हैं कि तुझे आबा से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती कि वो गुफ्तार तू गुफ्तार वो किरदार, तू सिर्फ कहता है, वो करते थे कि तू गुफ्तार वो किरदार हाजत सैयारा। हजरात, आज हमारे ईमान पर धावा बोलने की और हमें हमारे ईमान से हटाने के लिए अनथक कोशिशें हो रही हैं। आज हमारे खिलाफ प्लानिंग की जा रही है कि मुसलमानों को कैसे उनके ईमान से उनको हटाया जाए। एक जमाना था कि मुसलमान बहुत ज्यादा ताकतवर माने जाते थे, मुसलमान एक सुपर पावर कौम मानी जाती थी, लेकिन वो ताकत और वो सुपर पावर हम क्यों थे उस जमाने में? उसकी वजह हमारे तादाद का ज्यादा होना नहीं था। आप ये मत समझिए कि उस जमाने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील पर अपनी हुकूमत और इस्लाम की सल्तनत का परचम लहरा दिया था, तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। ऐसी कोई बात नहीं है। उस जमाने में जो मुसलमानों की ताकत थी, वो ताकत उनके ईमान के बलबूते थी, अफराद के बलबूते नहीं थी। ईमान के बलबूते वो ताकत थी, अफराद के बलबूते वो ताकत नहीं थी। लेकिन आज जब हमारा ईमान खोखला हो गया है तो हमें मिटाने की और हमें इस दुनिया से हटाने की कितनी कितनी प्लानिंग हो रही है। आज नौजवानों की एक जमात मुसलमान लड़कियों पर शिद्दत से हमला कर रहे हैं, उनको इर्तिदाद की तरफ ले जा रहे हैं। आज मुस्लिम लड़कियों से जबरदस्ती शादियां की जा रही हैं। आप अदालत में देखिए कि आज से 15 केस रोजाना अदालत में ऐसे जाते हैं
आते हैं जिसमें पता चलता है कि मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ जा रही हैं, मुस्लिम लड़कियां गैरों से शादियां कर रही हैं। आज हमारा ईमान क्यों बिकता जा रहा है? आज हम मुसलमान क्यों खोखले हो रहे हैं? हमारे मुसलमान लड़के चंद पैसे लेकर अपने ईमान को बेच रहे हैं, चंद सिक्कों के बदौलत अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसके असबाब क्या है? हमने उसके असबाब की तरफ कभी गौर नहीं किया कि आज हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथ क्यों शिकार हो रही हैं, आज हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों से क्यों शादी रचा रही हैं। इसके आखिर वजह क्या है? इसके आखिर असबाब क्या है? हमने कभी इन असबाब पे गौर नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को दीनी तालीम से एकदम से दूर रखा। हमारे बच्चे दीनी तालीम को जानते ही नहीं। हमें अगर फुर्सत मिलती है तो हम गेम खेलते हैं घर में बैठकर, गाना बजाना करते हैं, नाचते हैं घर में बैठकर और तरह तरह के बेहुदा काम करते हैं। लेकिन कभी किसी को यह तौफीक नहीं हुई कि आज इतवार का दिन है, आज संडे है, आज हमको फुर्सत मिली है तो लाइए अपने घर में आज हम सब लोग बैठकर कुरान की तिलावत करें। हमारे बड़े ये नहीं सोचते कि आज फुर्सत का दिन है तो कहीं घूमने नहीं जाना है, आज फुर्सत का दिन है तो कहीं पिकनिक पे नहीं जाना है, बल्कि लाओ अपने तमाम बच्चों को बिठाकर कुछ नसीहत करें, कुछ दिन की बातें बताएं। लेकिन नहीं, हमारे बड़े ये भी नहीं करते, बल्कि वो ये क्या करेंगे, उनको खुद इस्लाम का इल्म नहीं है, उनको खुद ईमान का इल्म नहीं है तो दूसरों को क्या पहुंचाएंगे। इस वजह से आज हमारा मुआशरा और हमारे इस्लाम पर और हमारे ईमान पर खतरे मंडलाते नजर आ रहे हैं। इस वजह से हमारे ऊपर प्लानिंग हो रही है। हमने उनको खुद मौका दिया है, आज हम अपने बच्चों को बताने वाले नहीं रहे, आज हमारे बड़े हमारे बताने वाले नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चे कोई आगे चल के वली और औलिया नहीं बनेंगे, बुजुर्ग नहीं बनेंगे, बल्कि वही नाचने और गाने वालों के पैरोकार बनेंगे, उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं का कपड़ा पहनेंगे, उन्हीं का लिबास पहनेंगे और उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। अफसोस होता है कि कल वो जमाना था कि जब तमाम तर पाबंदियां थी उसके बावजूद भी इस्लाम पर अमल होता था, और आज कोई पाबंदी नहीं है उसके बावजूद भी इस्लाम को छोड़ा जा रहा है, बल्कि कोशिश की जा रही है कि एकदम से इस्लाम को छुड़वा दिया जाए ताकि मुसलमानों को बेकाबू किया जाए और उनके मजहब पर हमला किया जाए और उनको जलील खार किया जाए। हजरात, इसके असबाब पे हमें गौर करना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है कि हमारी मुस्लिम बच्चियां और हमारे बच्चे इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा जैसे ही पैदा हो और वो बड़ा हुआ, समझ उसके अंदर आया, तो उसको अंग्रेजी तालीम फौरन नहीं देनी है। सबसे पहले उसको अपने मस्जिद या मदरसे के किसी मकतब में भेजना है ताकि वो कुछ दीनी तालीम वहां से हासिल करे, उसको कुछ दीनी तालीम का इल्म हो जाए। उसके बावजूद आप उसको स्कूल और कॉलेज भेजिए, उसके बावजूद आप उसको पढ़ाइए, कोई मना नहीं करता। क्योंकि जब हम बच्चों की बुनियाद ही को मजबूत नहीं करेंगे और बाद में जब वो बड़े हो जाएंगे, 8वीं 10वीं में पहुंच गए, उसके बाद हमने क्या किया कि किसी हाफिज जी या मौलवी साहब को घर पे बुलाया और ट्यूशन वगैरह पढ़ाया, 100-200 उनको दिया, आधा घंटा वो पढ़ाए और उसके बाद में हो गया, कुरान की तालीम सीख गए वो। इस तरह से जो हम करते हैं और ये नजरिया जो हमारा है, इसकी वजह से आज हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी बीवियां इसी वजह से बिगड़ रही हैं कि हम शुरू ही से, बुनियादी से, जब बच्चा एकदम से छोटा ही रहे उसी वक्त उसके ऊपर कंट्रोल करें और उसी वक्त उसको पहले इस्लामियात सिखाएं, उसके बाद जो है आप दूसरे इल्म को, दूसरे फन को सिखाइए, कोई मना नहीं करता। लेकिन तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना और इतना इल्म का हासिल करना कि जिससे हलाल और हराम की तमीज आ जाए, यह हर मुसलमान पर फर्ज है। जिस तरह नमाज आपके ऊपर फर्ज है, नमाज छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, इसी तरीके से यह इल्म भी है कि जब तक आप इतना इल्म न सिखा दें जितने से उनको हलाल और हराम की तमीज हो जाए, जब तक जो है उनका काम नहीं चलने वाला है। तो इस वजह से सबसे पहले उनको दीनी तालीम सिखाएं, उसके बाद जब वो बड़े हो तो फिर आप उनको स्कूल में भेजें, कॉलेज
कॉलेज में भेजे, यूनिवर्सिटियों में भेजे, खूब पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाएं, तब जाके हमारे ये बच्चे गैरों के हाथों बिकने से बच सकते हैं, वरना हमारे ये बच्चे गैरों के हाथों बिकने से कोई नहीं रोक सकता है। आज आप इन बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी में पढ़ने वाले हैं, आप उनको उठा लीजिए और पूछिए कि ये बताओ 4 मशहूर सहाबी का नाम क्या है, 4 पैगंबर का नाम बता दो, 4 आसमानी किताबों का नाम बता दो, ये आपको नहीं बता पाएंगे। इनको हिचकिचाहट होगी, आखिर क्यों नहीं पता है इनको, हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा ईमान क्या कहता है, हमारी ईमानी तालीमात क्या है, हमारे इन बच्चों को नहीं पता है। और हाँ, अगर इनसे पूछ लिया जाए कि गेम के बारे में बताओ और फला चीज के बारे में बताओ, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताओ, किसी क्रिकेटर के बारे में बताओ, तो ये खड़े होकर और सीना तान कर भौकाल के साथ बताते हैं कि ये नाम है, ये नाम है, ये है, ये फला ने कब सेंचुरी मारी, फला कौन सी फिल्म निकाला, ये सारी चीजें हमारे बच्चों को पता है। लेकिन अगर दीनी तालीम के बारे में उनसे पूछ लिया जाए, कुरान के बारे में पूछ लिया जाए, तो हमारे इन बच्चों को नहीं पता। आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी कमजोरियां क्या है, इसकी वजह कौन है? इसकी वजह हम ही और आप हैं कि हमने इनको दीनी तालीमात से दूर कर दिया, और इस वजह से आज इनके ईमान पर इस तरह से हमला हो रहा है, इस तरह से हमला हो रहा है कि वो मुसलमान रह ही नहीं जाते हैं। मुसलमान बच्चियों पर इस तरह से हमला हो रहा है कि वो मुसलमान रह ही नहीं जाती हैं। ये सारे असबाब हैं हमारे मुआशरे के, जो इर्तिदाद की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे ईमान पर धावा बोल रहे हैं और हमारे ईमान में खतरा पैदा कर रहे हैं। और एक वजह, सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है, वो ये है कि हमने अपनी शादियों में अखराजात को बहुत ज्यादा कर दिया। हमने अपनी शादियों में इतना पैसा खर्चा कर देते हैं, इतना पैसा खर्चा कर देते हैं, और इतना जहेज जैसी लानत का ऐसा माहौल बना दिए हैं, इतना माहौल बना दिए हैं कि आज बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां जो है अपने घरों में बैठी की बैठी रह जाती हैं और उनकी शादियां नहीं होती हैं। बस वो इसी इंतजार में रहती हैं कि कोई गरीब आएगा और हमें लेकर जाएगा। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन बच्चियों को कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि उनके वालिदैन के पास, उनके माँ बाप के पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो आजकल जैसी शादियां कर सके और अपने बच्चों को उतना जहेज दे सके। और आखिर में होता क्या है, वो बच्चियां गैरों के हाथों में चली जाती हैं, गैरों के हाथों में बिक जाती हैं, अपने ईमान का सौदा कर लेती हैं। मुसलमानों, ये हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी शादियों में इतना ज्यादा खर्चा कर दिया है, इतना ज्यादा खर्चा कर दिया है कि आज हमारी वजह से हमारी मुस्लिम बच्चियां गैरों के हाथों में जा रही हैं, वो गलत ताई की तरफ बढ़ रही हैं। उलमा फरमाते हैं कि जब शादियां सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, निकाह को अल्लाह ने बहुत आसान बनाया है, लेकिन हमने क्या किया, उसको मुश्किल बना दिया। और जब निकाह मुश्किल होगा तो जिनाकारी आम होती चली जाएगी। जब निकाह मुश्किल होगा तो लड़के जल्दी जो है गुनाही की तरफ जाएंगे। निकाह माँ बाप करेंगे नहीं तो लड़के और लड़कियां क्या करेंगी, वो भी अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इधर और उधर मुंह मारने के लिए चली जाएंगी। इसकी असल वजह और बुनियादी वजह यही है कि आज हमने शादियों को मुश्किल बना दिया है। शादियों में इतना ज्यादा पैसा हम खर्च करने लगे हैं कि दूसरे एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। वो सोचते हैं फला ने शादी में 10 लाख खर्चा किया तो हम क्यों ना खर्चा करें। भले बच्चे की उम्र 2 साल निकल जाए, अगर वो 22 का है 24 हो जाए, 24 का है 26 हो जाए, बच्ची 18 की है 20 हो जाए, 20 की है 22 हो जाए, लेकिन हम जब तक पूरा पैसे का इंतजाम नहीं कर लेंगे, जब तक ढोल ताशा डीजे और किस्म किस्म के खानों का इंतजाम नहीं कर लेंगे, जब तक अपने बच्चों की शादी नहीं करेंगे। और इसी दरमियान जब हम शादी के इंतजामात में लगे रहते हैं, इसी दौरान हमारी बच्चियां गलत कार्य का शिकार होती हैं, हमारे बच्चे गलत तरीके से अपने ख्वाहिशात को पूरा करती हैं। कोई गैरों के साथ लगकर अपने ख्वाहिशात को पूरा करता है, कोई गलत तरीके से फिल्म और पिक्चर देखकर अपने ख्वाहिशात को पूरा करता है। इसकी असल वजह और बुनियादी वजह हमारे माँ बाप है कि उन्होंने हमें ईमान की तालीम नहीं दी और उन्होंने इस्लाम को देखते हुए और इस्लाम के तरीकों को देखते हुए बालिग होने के बाद फौरन शादियां नहीं की, बल्कि अपना तालर और अपना सर बुलंद करने के लिए तरह तरह के इंतजामात में लग गए। और आज इस वजह से हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां माशरे को बिगाड़ रही हैं। मुसलमान होने के बावजूद जो है इस तरह के गुनाह
میں ملوث ہو رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے شادیوں میں اخراجات کو زیادہ کر دیا۔ یہ سب جو ہے ہمارے ایمان کو بچانے کے راستے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمان جو ہے ایک بہت اہم نعمت ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس کی حفاظت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب میں نے بتایا کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ کو مان لیے، رسول کو مان لیے، قرآن کو مان لیے، حدیث کو مان لیے، فرشتوں کو مان لیے، بس ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو، تو بس نماز قائم کرنا ہے۔ اس کے آگے یہ نہیں سوچنا ہے کہ 10 منٹ اور اپنی دکان پر رہ لیں، ہمارا دھندا بڑھ جائے گا، ایسا بالکل نہیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ ہمیں چل دینا ہے مسجد کی طرف، ارے چھوڑ دیجئے ان دنیاوی نعمتوں کو، آئیے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ کے جو ہے حکم کو بجا لانا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کو بچانے کا جو وسیلہ اور جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم دیں۔ اپنی بچیوں کو جو ہے جس طریقے سے وہ آج اسکولوں اور کالجز میں بڑے بڑے بچوں کے سامنے ہماری بالغ بچیاں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، اس میں ہندو بچے بھی رہتے ہیں، مسلم بچے بھی رہتے ہیں، اس طرح کے اسکول اور کالج سے اپنی بڑی بڑی بچیوں کو بچائیے۔ یہ سب سے زیادہ وہ وہاں پہ تو جو ہے سیکولر بننے کا کام کرتے ہیں، لیکن پھر وہی نوجوان پوری پلاننگ کے ساتھ ہمارے مسلم بچوں کو بہکاتے ہیں اور ان کو دین سے ہٹاتے ہیں اور ان کو لالچ دے کر اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو بند کرنا ہے کہ اپنے بچیوں کو پڑھائیں، لیکن ایسے اسکول اور کالج میں پڑھائیں جہاں پہ جو ہے مخلوط تعلیم نہ ہوتی ہو، سب لوگ ایک ساتھ نہ بیٹھتے ہو، کوئی ایسا نظم ہو۔ اور ہمیں اپنے اسکولوں میں بھی ایسا نظم اور ایسا طریقہ نکالنا چاہیے کہ بچے الگ بیٹھیں، بچیاں الگ بیٹھیں، کیونکہ جب دو لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو شیطان ان کے بیچ میں 100% جو ہے حاوی ہوتا ہے اور آپس میں غلط کاری کروانے کا کام انجام دیتا ہے اور شیطان آخرکار کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب ہمارے ایمان سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے ایمان سے متعلق ہے کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ اپنی شریعت کو بچانا زیادہ ضروری ہے یا اپنے بچے اور بچیوں کو مخلوط تعلیم دینا زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے لیے ہمارا ایمان زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے ہماری دکانیں زیادہ ضروری ہے، ہمارے لیے ہمارا ایمان زیادہ ضروری ہے کہ آج ان جو ہے شریعت کو بدنام کرنے والے اور شریعت پر ڈاکہ زنی کرنے والوں کے طریقے کو اپنانا ہے۔ ہیرو ہیروئن اور طرح طرح کے مصیبت زدہ لوگ اور اسلام پر مصیبت ڈھانے والے لوگوں کو اتباع ضروری ہے یا اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، اپنا گھر بار اجاڑ سکتا ہے، اپنا گھر بار قربان کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی خاصیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔